Sir, it's correct. Correct? Okay. Now, note down fast. Note it down fast. Sir, done. Okay. Third says B third. Question number 2, part B, third question. First ball is blue, second ball is red. So first is blue, second is red. I will write on here. Next page. Third. First is blue and second is red. Correct? So let's see that. First is blue, second red. What is the probability now? Check it directly. How much it is? Meenakshi? 35 over 144. Good. So we can directly write down here that is coming BR. So 35 over 144. Check the answer. Sir, correct. Correct. Fourth number says two balls are the same color. Acha, two balls are same color. So let me see here. Fourth number. Two balls are same color. So same color क्या हो जाएगा? Same color जो है एक RR हो जाएगा और BB हो जाएगा, right? Yes. तो हम RR और BB लिख देते हैं यहाँ पे. ओ कहाँ गया? इससे पहले, yes. So we can write down here RR और BB. So RR जो है वो 25 over 144 है और ये 49 over 144 है. तो ये बन जाएगा 4 here और 4 2 6 7 74 upon 144. We can cancel out. So ये हो जाएगा कितनी बार में 74 by 2 36 37 and this will give me 72. I don't think ये जाएगा अब कुछ भी. So check the answer. Check the answer for the fourth number. So the answer is given 74 by 144. They have not reduced it. They have not reduced. Okay, no problem. Chalo, fifth So number. now we can do the next question. So you can do the other part also, right? Yes. Okay. So now Yes, the third number. I'm taking for third. Give me a second. I don't think third I can read properly. Third मेरे लिए read करना possible नहीं है. Can you read it fast? देखो इस तरह की इमेज मुझे दिख रही है. Okay, I can try to read it. Don't worry. Can you hear me? Yes, sir. Okay, so I can read. They says that Devin and Tej are playing cards. Devin drawn a card and replace it. Then the shuffle the pack. Tej then draws a card. Okay. David drawn a card and replace it and then shuffle the pack and then Tej draw the card. Okay. Both. Okay. So यहाँ पे David और Tej. Okay. Both drawn an ace. Both drawn an ace. So I think what will be A? Condition A in this case. David and ace. So here both drawn an ace. So probability both drawn an ace. A, how many ace do you have in a card? Sir, 4. So you have 4. 4 upon 52 times 4 upon 52. So it will become how much? 16 over. What the answer they have given? Sir, it will be 16 over 2704. No, the answer what they have given in the book. They have given denominator in the denominator they have given 169. Correct, 69. Because why they have given 169, I will let you know. Can we cancel out? 1 over 169. Can we cancel out? Yes. So this becomes
1/69. Is it clear now? Yes, sir. अच्छा चलो सेकंड, बोथ ड्रॉज किंग ऑफ हर्ट्स. अच्छा किंग ऑफ हर्ट, ओके बहुत सही है. सो एक किंग ऑफ हर्ट, अच्छी बात है. बोथ ड्रॉज किंग ऑफ हर्ट. So do you think how many king of heart do you have? Only one. Okay. How many king of heart do you have? Only one. Only one king of heart do you have. Check the answer. Is it given like this? Check the answer. Yes, sir. Is it the correct answer? Yes, sir. Okay, C. We will go for the C. C says Devin draws a spade and Tej drawn a queen. Okay, ये तो बहुत मजेदार चीज हो गई जी. अभी इसमें देखो, यहां पर लिखेंगे हम spade and queen. Okay, can you hear me? Yes. अच्छा नहीं, स्पेड और क्वीन होगा यहाँ पे, स्पेड और क्वीन, क्योंकि दूसरे ने उठाया ना, तो कोई रिलेशन नहीं है दोनों में. नहीं, एंड दे रखा है, सॉरी, एंड ऑलरेडी है, एंड ऑलरेडी है. अब एक चीज देखो, डेविड ने स्पेड उठाया. कितने स्पेड उठाएगा डेविड? Sir, 4. नहीं, स्पेड कितने होते हैं? 13 स्पेड होते हैं. कितने होते हैं? अच्छा, और 14. क्वीन कितने होते हैं? 4. 4. सो ये हो जाएगा 1/4. कैन यू चेक द आंसर? इज इट 1/52? मुझे डाउट है थोड़ा इस आंसर पे. कैन यू वेरीफाई इट? Sir, it's correct. करेक्ट आंसर? ओके ठीक है, चलो, वो थोड़ा डाउट Yes, लग sir. रहा था. चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है. नेक्स्ट चलते हैं हम. नेक्स्ट कहता है एग्जैक्टली वन कार्ड ड्रॉन इज हार्ट. अच्छा, एग्जैक्टली वन कार्ड, तो इसका तो सिंपली लिख सकते हैं ना, हार्ट ड्रॉन हुआ है, राइट? सो हाउ मेनी हार्ट डू यू हैव? 13 हर्ट्स. So you can write 13/52. So 1/4. Check the answer. Sir, it's 3/8. 3/8. Yes. एक second. 1/4. 3/8. एक minute. Exactly one card drawn is hurt. एक सेकेंड रुक जाओ, मैं चेक कर लेता हूँ. अच्छा, एग्जैक्टली वन कार्ड. ओके, वन ऑफ द कार्ड ड्रॉन इज हर्ट. ओके 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 ओके, एक सेकेंड. अगर इसने हर्ट बनाया तो 1/4, और इसने क्या किया? गिव मी अ सेकेंड. Okay, I will come to this point. D1. D में क्या है? Can we go for the E now, right now? Hello? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. E क्या कहता है? Both cards are red, or मुझे दिख नहीं रहा नीचे क्या है लिखा हुआ. Black. Both cards are red or both cards are black. अच्छा. Okay. So मैं इसका E लिखता हूँ. Give me a second. E case says that both cards are red or both cards are black, right? So red की probability क्या होगी?
Red is 26 by 52 times 26 by 52 plus this also is 26 by 52 times 26 by 52. Okay. 226 because the black are also 26 cards, right? So एक काम करो आप 26 times 26 is 676 or 52 times 52 is 2704 into 2. Can you hear me? Yes, sir. 76 और इसमें 1352 अच्छा दोनों ही जा सकते हैं किससे जा सकते हैं 6 से नहीं जाएंगे 4 से जाएंगे क्या 338 एक मिनट रुक जाइएगा आंसर लिखने से पहले मैं चेक कर रहा हूँ 4 169 अब ये ऑड हो गए कैन यू चेक द आंसर इज इट द आंसर मीनाक्षी Sir, the answer is 1 by 2. 1 by 2. ओके 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 मैंने क्या कर दिया गिव मी अ सेकंड 169 times 2 हाँ आ गया ना देखो इसको कर देंगे कैन यू सी दैट मीनाक्षी Sir, can we cut this 26 and 52? वहां भी कर सकते थे वहां भी कर सकते थे वहां भी कर सकते हैं मीनाक्षी कोई प्रॉब्लम नहीं आप चाहे तो देखो ये कर लो ये हो जाएगा 1 by 2 1 by 1 by 2 1 by 2 1 by 2 ठीक है तो इतना मैंने इतना लिखा हो बेफिजूल में so this becomes 1 by 4 1 by 4 so this becomes 2 by 4 that is 1 by 2 clear Yes, sir. चलो पेज चेंज कर रहा हूँ रुक जाओ लास्ट कहता है द कार्ड्स आर डिफरेंट कलर्स अच्छा डिफरेंट कलर्स ठीक है लेट्स सी एफ नंबर डिफरेंट कलर्स का मतलब हो गया 13 by times 13 by 52 तो 1 by 4 1 by क्या आंसर इसका इज इट 1 by 16 लास्ट वन 1 by 2. इसका भी 1 by 2 है Yes, sir. हैं अच्छा ऐड कर दिया ओके 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 अच्छा हाँ एक दूसरे से रिलेटेड है they are independent yes they are independent they will add them together 1 by 2 will be the answer because 1 by 4 plus 1 by 4 okay so 2 by 4 that's 1 by 2 Okay, sir. चलो ठीक है ये लेवल वो डन ही है राइट ओके Yes. हम लोग अच्छा आपने स्कूल में पता क्या क्या टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग हाँ जी सर क्या कर सर रहे हैं उन्होंने बोला कि मिड टर्म में 8 chapters will come excluding fourth. So now they have started 7th chapter that is perimeter area. आधे ओके चलो ठीक है So ओके first we can finish this chapter which we have started. हाँ उसको हम फिनिश करते हैं बिकॉज दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वो तो आएगा ही आएगा बाद में आएगा आ जाए चलो आधा देखो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना एंड दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर ठीक है इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उसको खत्म करूँ आपके साथ ठीक है Yes, तो चलो sir. यहाँ तक तो कर लिया हमने ठीक है अब आते हैं अपने स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट लाइन में जरा आप अपना बुक निकालो अब बुक आ ही चुका है तो अच्छी बात है बुक निकालो जरा Yes, sir. बुक में अच्छा मुझे पेज नंबर नहीं दिख सकते इसमें ओके कोई बात नहीं बुक में आप ना एक काम करो आप 10.1 एक्सरसाइज खोलो Yes.
इसमें सारे एक्सरसाइज 10.1 में ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट लिखने के लिए पूछा है, राइट? तो ये ऑलरेडी Yes. हमारा हो चुका है। सेकंड एक्सरसाइज जो है 10.2 खोलो, Yes. उसमें आपसे क्या पूछा है? प्लॉटिंग के लिए पूछा है, मतलब दे रखा है, और उसके बाद उसने ग्रेडियंट के लिए पूछा है, राइट? Yes. ओके, उसके तो हमारा 10.2 भी हो चुका था, करेक्ट? उसके Yes. बाद हम अगर मूव करते हैं, एक सेकेंड, 10.3 में भी सेम काम किया है इन्होंने, ग्रेडियंट पूछा है 10.3 में। कैन यू सी दैट? Yes, sir. तो ग्रेडियंट तो आप आसानी से निकाल सकते हो। Yes. अच्छा, इस इन्होंने ग्रेडियंट में क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2, Yes. एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या दिया है? 2 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। क्या दिया है? 2 points. अगर मैं दिखाऊं क्वेश्चन, ये कुछ ऐसा है, आई विल जस्ट शो यू what they have told us. They have given just 2 points. Can you see that? Yes. अच्छा, तो 2 पॉइंट्स अगर दे रखा है तो ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे बताओ? Y1 plus Y2 नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, याद रखो, जब भी 2 पॉइंट्स दे रखा है सो ग्रेडियंट हो जाएगा, एक फॉर्मूला नोट कर लो, ग्रेडियंट विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसी को कहते हैं जी डेल्टा y, इसी को क्या बोलते हैं? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अब देखो मैं Sir, हाँ बताओ। we cannot find midpoint with this formula. यहाँ मिड पॉइंट की क्या जरूरत है? कोई जरूरत है क्या मिड पॉइंट का हमें? नहीं सर, मिड पॉइंट की जरूरत नहीं है, मिड लेकिन हमें पॉइंट कुछ निकाल ऐसा फॉर्मूला मिड पॉइंट के लिए कराया था। हाँ, तो मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट का अलग फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके। बट मिड पॉइंट की कोई जरूरत नहीं है, मिड पॉइंट भी कर सकते हैं, डोंट वरी। अब देखो मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, इसमें से ए, इसमें एक दे रखा है 1,2, तो आप इसको मान लो x1 y1। क्या मान लोगे? x1 y1। X1 Y1. और बी दे रखा है 3,8, तो आप इसको मान लो x2 y2। कोई दिक्कत है? No sir. तो आप इसको लिखो, ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आप लिखोगे 8 माइनस 2 एंड 3 माइनस 1, दैट इज हाउ मच? 6/2, दैट गिव्स मी 3। क्लियर है? Yes sir. नोट कर लो इसको जल्दी से, कि जब 2 पॉइंट्स दिया रहे तो 2 पॉइंट्स पर हम ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं। सेम चीज वही है जो मैंने आपको पढ़ाया था, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, चीज वही है, देयर इज नो डिफरेंस इन दैट। आई विल शो यू राइट नाउ, डोंट वरी, मैं आपको अभी दिखाता हूं कैसे। आप इसको नोट करो, मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है? सर हो गया नोट। हो गया नोट? चलो मैं आपको ना एक क्वेश्चन लेके आपको दिखाता हूं कि कैसे ये चीज मैंने जो बताई और जो आपने किया दोनों ही सेम कैसे है। आई विल जस्ट लेट यू नो, ठीक है? ओके सर। ये क्वेश्चन देख रहे हो आप ही के बुक का क्वेश्चन है, सेम उसी के ऊपर में, यस। उसी के ऊपर में 10.3 एक्सरसाइज ए, क्वेश्चन नंबर 1A। इसका स्लोप निकालना है। कैसे निकालोगे आप स्लोप बताओ? आप सीधा क्या करोगे बताओ, कैसे निकालोगे स्लोप? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो कहीं 2 पॉइंट्स तो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। यस। अच्छा, इस पॉइंट को सिलेक्ट करने से फायदा है क्या, बताओ मुझे? नो, क्यों फायदा नहीं है? बिकॉज इट इज इन मिड पॉइंट एंड इट विल क्रिएट। हम कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, राइट? यस। तो अगर आप देखो तो मुझे एक मेरा पेन क्यों रुक गया, ओह सॉरी, एक सेकेंड। अगर आप देखो तो मुझे एक पॉइंट ये सुटेबल लगता है और दूसरा पॉइंट मुझे ये सुटेबल लगता है। क्लियर? अब देखो आपका तरीका और मेरा तरीका जो मैंने पहले सिखाया था, क्या करते हम, वी विल जस्ट फाइंड डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई कितना आ गया यहाँ से? 3। कितना आ गया? 3। अगर आप देखो तो ये 1 है ना, 3। सो 1 से यस। 4 गया तो ये डेल्टा वाई आ गया जी 3। और डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा? ये हो गया 1। सो डेल्टा वाई हो गया 3, डेल्टा एक्स हो गया 1। सो वैल्यू ऑफ एम मीन्स, एम का मतलब क्या है? स्लोप, राइट? यस।
So slope means we can say delta y by delta x, that is 3/1. ये मेथड मैंने सिखाया था आपको, करेक्ट? नाउ Yes. तो अभी मैंने एक फॉर्मूला मेथड बताया, हम चलो उससे करते हैं. अभी अभी जस्ट मैंने सेम पॉइंट लिया. कैन यू टेल मी द कोऑर्डिनेट्स फॉर, सपोज इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं. कैन यू टेल मी द कोऑर्डिनेट फॉर द पॉइंट ए? इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1,4. 1,4. अच्छा, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? 0,2. 0,2 है, 0,1? 0,1 होगा ना, राइट? अच्छा, इसको मान लो जी x2 y2. ऊपर में है तो x2 y2 और नीचे वाले को x1 y1. कोई दिक्कत? No. चलो, value of m I told you y2 minus y1 upon x2 minus x1. So y2 की वैल्यू कितनी आई मुझे यहाँ पे? 4. y1 की वैल्यू कितनी है जी? 1. x2 कितना है हमारे पास? x2 is 1 minus 0. So this is how much? 3/1, 3. Is it coming the same? Yes. तो दोनों ही चीजें सेम है, बस उसमें ग्राफ नहीं दे रखा और इसमें ग्राफ था तो आपने डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कर दिया. अब आपको क्लियर हुआ कि दोनों फॉर्मूला सेम ही है? Yes. ओके जी, चले आगे बढ़े अब. Yes. अच्छा चलो, तो ये बड़ा आसान सा था. तो 10.3 एक्सरसाइज जी आपका हो चुका है, राइट? हमने लास्ट क्लास में किया था. अच्छा, दूसरी चीज हमने आपको इक्वेशन फॉर द स्ट्रेट लाइन सिखाया था. क्या सिखाया था? Equation for the straight line. अच्छा, उसमें हमने दो चीजें बताई थी आपको. एक था सीधा y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, राइट? इसमें Yes. क्या था? c वाज द इंटरसेप्ट, राइट? एंड Yes. एक फॉर्मूला ये था. दूसरा फॉर्मूला ये बताया था, इफ line passes through a point, line passes through a point x1 y1, तो हमने उसके लिए आपको बताया था y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1. ये हमने आपको सिखाया था, करेक्ट? कोई दिक्कत इसमें? हेलो? So this formula is for y-intercept. नहीं, y-intercept नहीं. This is the formula for writing the equation if a line passes through this. If the line passes through a point x1 y1. क्लियर है? Yes, sir. मैं क्वेश्चन लूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी. ये दो फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया भी था और मैंने ये आपको सिखाया भी था, करेक्ट? तो Yes. चलो, पहले वाले में तो मुझे मालूम है कि आप बहुत अच्छे हो गए हो, पहला आप आराम से कर सकते हो, ठीक है? लेकिन दूसरे वाले प्रॉब्लम में मुझे मालूम है कि आप उतने अच्छे नहीं हो, तो मैं आपको दूसरा वाला प्रॉब्लम पे मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है? आर यू रेडी फॉर दैट? Yes, sir. अच्छा, चलो मैं क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे. आई एम टेकिंग वन प्रॉब्लम. गिव मी अ सेकंड. Just a moment. I'm just taking and then I will let you know. I'm writing the question. Find the equation of a straight line. Find the equation of a straight line which has a gradient, Gradient. minus 3/2. How much is the gradient? Minus Minus 3/2, 2. which passes through
through minus 3 comma 1, which passes through where? minus 3 comma 1. ये है जी हमारा क्वेश्चन. इसमें दो बातें दे रखी हैं. एक तो उन्होंने हमें ग्रेडियंट दे दिया. क्या दे दिया? ग्रेडियंट दे दिया. And this says that the line passes through this point. तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ पे ये पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा. सॉरी, यहाँ नहीं, -3 मतलब ये कुछ यहाँ जाएगा. This will be -3 comma 1. So how you can say that 1 is the intercept? 1 इंटरसेप्ट नहीं होगा ना जी. अगर लाइन कुछ बन भी रही होगी तो लाइन कुछ समथिंग ऐसे बन रही होगी यहाँ पे. Am I right or wrong? Tell me. Sir, it will be negative line. नेगेटिव भी बन सकता है, ये ऐसे भी बन सकता है. अगर नेगेटिव ही हो, it will be negative because the gradient is negative. Yes, gradient नेगेटिव तो नेगेटिव ही होगा. अब इसका y इंटरसेप्ट यहाँ पर आया. अब वो कितना है मुझे क्या पता, नहीं पता ना. So let's do it. Yes. Let's work out how to solve. So solution में मैंने बताया आपको एक फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला, y minus y1 is equals to m times x minus x1. So आप एक काम करो, आप यहाँ लिखो y minus y1 का मतलब हो गया 1, m का मतलब हो गया -3/2, x minus x1. So can we write like this? Yes. Y minus 1 minus 3/2 x plus 3. चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. So this becomes 2y minus 2 minus 3x और ये हो जाएगा -9. So हम लिख सकते हैं 3x plus 2y और इसको लिख सकते हैं plus 7 equals to 0. This is the equation. Can you see that? Sir, can't we change this equation in the form y is equal to mx plus c? We can. उस फॉर्मेट में अगर चेंज करना है आपको तो give me a second. Give me a second, please. Can you hear me? Yes, sir. अब देखो, अगर आप उस तरह फॉर्मेट पे चाहते हो तो चलो मैं इसको यहाँ रद्द कर देता हूँ और यहाँ भी इसको रद्द कर देता हूँ. ठीक है. अब इसको हम लिख सकते हैं y minus 1 minus 3/2 times of x और इसको लिख सकते हैं -9. कोई प्रॉब्लम? No. 9/2, सॉरी 9/2 लिखना पड़ेगा. कोई प्रॉब्लम? हाँ. No, sir. अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये 1 इधर आएगा या नहीं आएगा? So it will become here -3/2 of x और ये हो जाएगा कितना? -9 plus 1. So अगर हम इसको सॉल्व करेंगे so 3/2 of x और ये बन जाएगा -7, ये ऊपर चला जाएगा -7/2. Can you see that? Can you see that? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लो. Sir, done. डन. अच्छा, ये क्वेश्चन था कि जब लाइन सिंगल पॉइंट से पास करेगा और आपको ग्रेडियंट दिया हुआ रहेगा. डू यू क्लियर? Yes, sir. ओके. गिव मी अ सेकेंड. नोट कर. अच्छा, ये फॉर्मूला नोट किया आपने? दिस फॉर्मूला हैव यू नोटेड? Yes, sir. अच्छा, तीसरा फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखने का. इफ लाइन passes through 2 points, if line passes through 2 points x1 y1
and x2, y2. So you can write down here y minus y1, y2 minus y1, x2 minus x1, and x minus x1. Can you see the formula? Yes, sir. अब ये बोलो कि आप सर इतना फॉर्मूला क्यों लिखवाए जा रहे हो? अगर जरा चलो पहले नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ कि मैं क्यों लिखवाए जा रहा हूँ। मैंने कोई नया फॉर्मूला नहीं लिखवाया है, पुराना ही फॉर्मूला है, बस मैंने लिखने का तरीका बदला है। वही तरीका मैं आपको समझाऊंगा अभी कि मैंने अभी क्या तरीका बदला, क्योंकि मुझे कैसे फॉर्मूला याद रह जा रहा है। मेरा दिमाग बहुत कमजोर है, मुझे फॉर्मूला याद नहीं रहता। नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ। सर हो गया। हो गया, ओके। नाउ लिसन मी, आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू रिमेम्बर इट। आप यहाँ देखे हो m की वैल्यू क्या लिखी है मैंने यहाँ पे? ऊपर नीचे m की वैल्यू को मिलाओ, मैंने फॉर्मूला में क्या लिखा है? सर मीनाक्षी, m की वैल्यू हाँ कुछ बोलिए नहीं लिखा। नहीं, वैल्यू मतलब m की जगह पे मैंने क्या लिखा? अगर ये आप ये फॉर्मूला देखोगे, ये और ये, तो m की वैल्यू में क्या लिखा हुआ है बताओ? इज इट द सेम रिटन? m को ही हम लिखते हैं ना 2 पॉइंट से जब पास करेगा। अभी अभी बताया ना m का फॉर्मूला, जब 2 पॉइंट से पास करता है तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1 लिखते हैं, यस सर। राइट? यस सर। तो आप नोट कर लो। स्ट्रेट लाइन में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, सो कमर कस लो जल्दी से। In the third equation, why we हाँ, are multiplying this x minus x1? क्योंकि ये ऊपर से ही आ रहा है। ये देखो, ये देखो, बस हमने क्या किया, m के जगह पे y2 माइनस y1 किस लिए लिखा? क्योंकि इससे हमको स्लोप मिल जाएगा। अगर ये 2 पॉइंट्स देंगे तो अभी अभी आपने स्लोप निकालना सीखा ना 2 पॉइंट्स के हेल्प से, यस सर। तो स्लोप की जगह बस ये वैल्यू लिखिए, बाद बाकी सब कुछ सेम लिखा है। लुक हियर, फिर हमारे पास आंसर क्या निकलेगा? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, और हाँ ग्रेडियंट निकलेगा और इक्वेशन भी बनेगा। आई विल टेल यू, डोंट वरी। आप पहले क्वेश्चन नोट करो, मैं बताता सर हूँ। हो गया। क्वेश्चन हो गया, ओके। हाँ सो जी। आई एम जस्ट गोइंग टू लेट यू नो वन क्वेश्चन हियर, गिव मी अ सेकंड। So you can write down a question. मैं एक एग्जांपल और देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर मैं ले ही लेता हूँ बेस्ट जगह से। गिव मी अ सेकंड। कैन यू हियर मी? यस सर। या बस एक सेकंड रुको, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि ना आपको दिक्कत ना हो। अरे यार, इन्होंने क्वेश्चन ही अच्छा नहीं दिया है। Give me a second, they have not taken a good problem. I am taking a good problem for you. Okay. Yes, Meenakshi, can you hear me?
Meenakshi, Yes, can you sir. hear me? Okay. Uploading one question and you will try to solve this. Ye raha. Okay. Can you see the question, please? Yes, sir. So in this question, we have to find the equation of the straight line which passes through this and this. अब देखो इसमें करने का तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनना. आप x1 y1 मान लो कौन है 1 एंड -2 और x2 y2 मान लो कौन है ये -3, 0. Any problem? No, sir. We know that y minus y1 times m x minus x1. ये आपको इक्वेशन पहले से पता है. Yes, sir. m की वैल्यू कैसे निकालते हैं, स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोग. अगर 2 पॉइंट्स है तो स्लोप हम निकाल सकते हैं ऐसे या नहीं. Yes. आपको पता है, राइट. चलो स्लोप Yes. निकाल लो, स्लोप निकाल लो. तो स्लोप 0 माइनस -2 और x की वैल्यू हो जाएगी -3 -3 -1. -1. So it gives me 2 upon -4. So it gives me half, right? Yes. So y minus -2 minus half x. Oh, मैं क्या लिख रहा हूँ, x minus 1. कोई प्रॉब्लम इसमें? So y plus 2 minus half x plus half. कोई प्रॉब्लम Sir, यहाँ through पे? this formula, what we are finding? We are going to find the equation for the straight line. आप ये देखो अभी कैसे straight line आएगा. Can you see this? Yes. So it becomes 3/2. So y is equals to minus half x plus 3/2 is the equation of a straight line. Clear है अभी या नहीं बताओ? Yes, sir. हमने Sir, can we not find y-intercept? तो y intercept निकाला ना, ये देखो, is it the y intercept now? Sir, particularly मतलब कि इसमें तुम्हारी क्वेश्चन भी आ गई ना सच में. तो y intercept अलग से अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो. मैं बता रहा हूँ कैसे. Shall I tell you? Yes, sir. चलो मैं वापस से क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और मैं बताता हूँ कैसे निकालनी है. बट आप y इंटरसेप्ट ही क्यों निकालना चाहते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा. क्या जरूरत है? कैन यू हियर मी? Sir, if they sometimes give us चलो to कोई find out बात नहीं. आप इसको मान लो a, इसको मान लो b. अब इस क्वेश्चन में हम y इंटरसेप्ट निकालेंगे. क्या निकालेंगे? y-intercept. y इंटरसेप्ट. सबसे पहले y इंटरसेप्ट निकालने का मतलब हो गया कि यू नो वेरी मच, you should know the value of m. m निकालना बहुत जरूरी है. Without the value of m we cannot find anything. And c is what? c is the y intercept, right? So सबसे पहले हम m निकालेंगे. m already you know that its m is minus half. हमने निकाल लिया पहले ही, correct? मीनाक्षी, Yes, sir. m हमने निकाल रखा ना पहले से, माइनस हाफ इसके लिए. Yes. चलो अब हम एक काम करते हैं. आप एक काम करो, इसको a पॉइंट माना है, किसी भी पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर दो x एंड y इस इक्वेशन में. सो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग -2, m की वैल्यू है हाफ टाइम्स x is 1 plus c. So just do it. So it's minus half plus c. So just do it. -2 plus half is equal to c. It becomes how much? So ये हो जाएगा -4 plus 1/2 is equal to c. So c value will become here -3/2. How much c value is coming? -3/2. So now we can write on the equation y is equals to minus half x minus 3/2. This is your answer. Clear है? Is this clear?
हेलो, Yes, sir. या दिस इज योर आंसर। और मैंने आई थिंक इस इक्वेशन में कहीं कुछ गड़बड़ी की है। ये वाला माइनस, एक मिनट रुक जाओ, ये माइनस माइनस और यहाँ पे क्या आएगा, -1, ठीक है, -1 और ये हाफ आ गया, ठीक है, तो +1 +1 वेट, और ये इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा ना, सॉरी, दिस विल मूव टू दिस साइड, सो दिस विल बिकम हियर -2, तो यहाँ पे ये भी माइनस आएगा, सॉरी मैंने यहाँ प्लस लिखा था, दिस विल बी -3/2 -3/2, अंडरस्टैंड। Yes, sir. तो हम चाहे ऐसे करें या वैसे करें, इक्वेशन हमको मिलेगा मिलेगा। डू यू क्लियर नाउ? अब मैंने यहाँ पे y इंटरसेप्ट अलग से निकाल कर आपको क्वेश्चन दिखा दिया है। Sir, why did you take this one? कहाँ पर? Okay, you put the values of x and y. Yes, I have Sir, put. we can put point B also. हाँ चाहे तो कर Like सकते हैं, चाहे तो कर minus लो, 0. चेक कर लो, चेक कर लो ना, चेक कर लो। मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, y 0 कर दो, m की वैल्यू हाफ कर लो, और x की वैल्यू -3 है प्लस c, तो ये 0 इज इक्वल्स टू 3/2 प्लस c, सो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/2। दिस इज योर आंसर। देखो यहाँ पे c की वैल्यू मैच कर रही है दोनों में। Yes, sir. तो मैंने इस केस में b की वैल्यू पुट कर दी, आपने कहा तो यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दी, दोनों ही कर सकते हैं हम, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। क्लियर है? Okay, sir. Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, यू नीड टू सॉल्व इट, फाइन? Okay, sir. आर यू रेडी? Yes, sir. Okay, find the equation of the straight line passing through the point this। आप इस तरीके से जैसे बने वैसे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, यू हैव टू, आप इंटरसेप्ट निकाल के बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। So this is the find the equation of a straight line passing through this. This is your question. Can you see? Yes, sir. Please go ahead, solve it. Sir, y is equal to minus half x plus 2. एक मिनट, y is equals to minus half x X plus 2। plus 2. अच्छा चलो मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, ये है 2, ये माइनस हाफ आ जाएगा, गुड, और इसको हम लिख सकते हैं 2 minus half x minus 0, so half x plus 2, good, perfect answer। So do you understand how to do this? Yes, sir. तो चलो आप एक काम करो, अपने बुक से, अब तो आपका वो खत्म हो चुका है, आप अपने बुक से, कहाँ गया आपका बुक, आप यहाँ तक क्या बोलते हैं,
एक्सरसाइज 10. एक मिनट, ये क्या है? एक्सरसाइज 10.34. यस, एक्सरसाइज 10.4. कैन यू सी दैट? Yes, sir. आप 10.4 तक बना के रखना, ठीक है? Okay, 10.5 sir. टच मत करना. 10.5 आई विल लेट यू नो. बहुत आसान है. उसके बाद डू नॉट वरी अबाउट इट. वो बहुत इजी है सारी चीजें, ठीक है? बट वो मैं बताऊंगा, Okay, देन sir. आपको बहुत इजी हो जाएंगे. अभी इसमें बताओ, इस चैप्टर में कोई टफ लगा क्या? No, sir. अच्छा, प्रोबेबिलिटी में भी आपको कोई टफ लगा क्या? उसमें ज्यादा थोड़ी सी चीजें हैं, राइट? सो No, sir. आप प्लीज उसको बनाओ. 10.4 एक्सरसाइज आप कंप्लीट करो. कब तक होगा 10.4? हेलो, Sir, next to next class, sir. नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास तक. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. हम अपनी क्लास वेडनेसडे को करेंगे. ओके, फाइन. Okay. Yes, sir. ओके, चलो हम वेडनेसडे को क्लास करेंगे. तब तक आप फिनिश करो. क्लियर है? Okay, sir. ओके, चलो बाय, टेक केयर. Bye, sir. Thank you, sir. या